Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। ठीक ठाक. Monday morning है, trying to go into the week with a positive mindset. Okay, let go of things and chill and relax and take life as it comes towards you. That's my Sunday evening me. When I tell myself, tomorrow, Shazia, you're going to become this cool, calm self who will have everything in order and you'll have time for your cup of coffee and you'll make notes before drama cup and you'll also see the website chat and you'll do. And then there's the Monday morning. So between the Sunday night and the Monday morning, there's this leap of faith which doesn't happen. I fall somewhere in between. बीच पे मैं गिर जाती हूँ लेकिन the news that I had in the morning, which is probably what got me delayed because I was reading the article, was that Mola Jet will be screened, inshallah, in China. What do you have to say to that, Rabia? Nothing actually. I'm sorry. Oof! Please, आप थोड़ा सा तो reaction दिखा दें मुझे, थोड़ा सा. I don't know what reaction were you expecting from me. I was expecting that you will be happy or proud because the China market is a very difficult market to get into. मैं उनका पढ़ रही थी उनके बारे में उनका सिनेमा बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होता है आई थिंक ओनली 24 और 14 फॉरेन फिल्म्स आर अलाउड एवरी ईयर इनटू द मार्केट और वो भी ब्लॉक कर देते हैं जब उनके चाइनीज न्यू ईयर उनकी हॉलीडेज होती हैं बिकॉज दे वांट लोकल सिनेमा टू फ्लरिश बट आई थिंक what has got them is the fact that this is very much like folklore जो आप चाइनीज ड्रामे भी देख रही होती हैं बहुत सारे जिसमें folklore होता है और राबिया मैं तो ये नहीं सोच रही थी मेरा तो दिमाग बहुत आगे भाग रहा था मैं कह रही थी oh if this can open collaboration because Chinese investment can come in they do have options for collabs and Pakistani storytelling and Chinese movies can play with subtitles in Pakistan and Pakistani movies can play with subtitles in China, but good movies like Mola Jet, because अब आगे जाके और collaboration मेरा तो दिमाग यूं करके खुल गया था with the market और आपने उसको यूं कर दिया क्यों राबिया क्यों? I really don't have an answer for your cue also. I don't know. I think I'm just so preoccupied with everything that's happening around here. Maybe that's why that it's not really hitting me. Maybe I don't see any future there, realistically speaking. And I know the quality of Chinese content, so to match it will be so difficult. Yeah, so many factors. I don't know, but good for the creators of Mola Jet. Mubarak to them. That's a big achievement, and I wish them all the best and luck in the future. That's all I can say. I do not know myself why I don't have a reaction to this. Okay, fine. I think that I agree with you that Chinese content has a different level, but I feel that's why I spoke about the collaboration with the Chinese investment and the Pakistani store because our stories are amazing. But maybe our production is not there anyway. Okay, let it be. Chalo, let's move on. Okay, so that was one news that crossed और भी बहुत मजे की खबरें आ रही थी आज सुबह को normally Monday morning नहीं आती हैं इतनी तो yeah that sort of woke me up but it also delayed drama cup which I apologize to online today. हमारी तो न्यूज़ ये कि भाई जो वो बकरा मंडी कहते हैं वो जो एनिमल्स की मंडी लगती है वो बहुत आजकल उसकी हाइप है लोग जा रहे हैं एंड इट्स सपोज टू बी रियली बिग और मैंने सुना है वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी एक बहुत बड़ी सी खुल गई है और उधर हर किस्म का खाना अवेलेबल है सो इट्स लाइक एन आउटिंग फॉर पीपल जो लोग जा रहे हैं लड़के ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज जा रही हैं तो ये मेरे पास तो ये न्यूज़ है और उसी के फ्लिप साइड ये कि द प्राइसेस हैव इंक्रीज सो मच दैट पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट के एंड आई थिंक देयर इज अ डिक्रीज इन द परचेजेस ऑफ एनिमल्स बिकॉज वो ridiculously high हो गए Animal purchases कम हो रहे for कुर्बानी लेकिन खाना पीना ज्यादा हो रहा है food street पे that's the information I getting. नहीं खाना पीना ज़्यादा नहीं हो रहा आउटिंग के लिए आप जा रहे हैं इट्स जो पहले भी होता था ऐसा नहीं है वो पिछले कुछ सालों से हो रहा है लड़कियां जाती हैं लड़कियों के ग्रुप्स जाते हैं वो जाके पूरा करके आती हैं फैमिलीज जाती हैं तो कैसा खाना होता है व्हाट डू दे हैव लाइक नहीं सेम यहाँ पे जो जैसे हॉट एंड स्पाइसी है तो उसका भी है कोई बर्गर का जॉइंट भी है बिरयानी भी है कढ़ाई भी है एवरीथिंग दैट यू फाइंड जो कराची के बड़े बड़े नाम है सब वो हैं कोई छोटे छोटे लोग ढाबे भी होंगे सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इज अ हैपनिंग थिंग आजकल लेकिन the prices have increased a lot. Oof, that's really sad. Actually, देखो आज connected to that prices increase भी हुई हैं आज फिर उनका ईरान और यूएस की कोई डील नहीं हो रही है
So again, everything, the price of petrol will go up, everything will go up. So ये जो ऊपर नीचे volatility, this is going to affect us long run in a lot of ways, and including bakra prices because of transport and fuel costs. And it's a very difficult time actually, it's very difficult time. Yeah. So that's all. सॉरी, वन थिंग, पहले लोग कहते थे कि हमें प्रमोशन चाहिए जॉब में, हमें बेहतर से बेहतर आगे बढ़ना है। अब लोग कहते हैं बस हमें अपनी जॉब रखनी है, वी जस्ट वांट जॉब सिक्योरिटी। आजकल ये हुआ हुआ है, व्हिच इज रियली स्कैरी। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि पुराने जमाने में भी पीपल वर हैप्पी विथ व्हाट they were doing, but यहाँ it's different. It's not that they're happy, it's just that they're scared they're going to lose their job, so it's a different thing altogether. कुछ हालात ऐसे हैं ना आजकल, so इस वजह से। Okay, we have 4 dramas. Yeah, we have Leader, Doctor Bahu, Winter Love and और कौन सा है हमारे पास? हमराही. हमराही, yes. ठीक है जी, so हमराही से start करें? Let's start with हमराही. Yes. तो हमराही, I feel कि हमराही ना जैसे मेरे जैसी ऑडियंस के लिए शायद थोड़ा सा इस बार की 2 एपिसोड्स वर टेस्टिंग माई पेशेंस, बट आई थिंक जो उसका क्राउड है, जो उसकी ऑडियंस है, उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि बड़ा उन्होंने खूबसूरत दिखाया कि वो शादी का सीन था, वो बाहर जाते हैं, और जो सेकेंड एपिसोड थी कि उसमें उसको पता चल जाता है सिहान को और उसे कहता है तुम चली जाओ, और फिर ऑलमोस्ट जब वो छोड़ के आने वाला होता है तो बड़ा एक रोमांटिक सा फिल्मी टाइप का एक उन्होंने सीन दिखाया और फिर उसको वापस ले जाता है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इट वाजंट फॉर मी बिकॉज बहुत लंबा खींचा था एंड आई न्यू योगा, लेकिन जो उसकी ऑडियंस मुझे लग रहा था उनको बड़ा मज़ा आया होगा। जैसे फिल्मों में होता है ना कि एक दुख का सीन दिखाते हैं, फिर एक ऑलमोस्ट जुदाई होती है, फिर मिलाप हो जाता है, तो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। So I think it was pushing it a bit too far, although I could understand his emotions कि भाई उसको अब पता चला है it's going to be very hard for him to survive. लेकिन राबिया, वो जो एक पाकिस्तानी ड्रामा ट्रूप होते हैं ना सेंसेशनल ड्रामास का, कि हीरोइन का हाथ पकड़ के और आप खींच के उसको लेके जा रहे हैं, that was actually my problem with the whole scene. बाकी सब ठीक था, I understood his sentiments, I just wish they had executed it in a different, in a better, क्योंकि मुझे उस वक्त सेहान पे तरस नहीं आ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर because of the way, because I saw an old Danish Taimur behaving like this in a different way with his heroines, and I feel the creators just cannot stop themselves from showing these scenes again and again, जबकि ये कितना different चीज थी वो जो वो कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको उसकी हिफाजत और उसकी सेफ्टी और उसकी वेलबीइंग की फिक्र थी। So I just wish they had executed it differently for, like you're saying, audiences like us. मैं क्यूरियस हूँ कि उसका जो बाप है गाजी, उसने बोला है अपने बंदे को, जो उसका साथ वाला सेकंड इन कमांड है, कि भाई तुम हॉस्पिटल की डोनर लिस्ट चेक करो। अब उस डोनर लिस्ट में इसका नाम होगा, राइट, एलिफ का। तो फिर मैं यही सोचूं कि क्या वो ही विल बी सो लीथल एंड रूथलेस कि वो उसको मार देगा अपने बेटे के दिल के लिए, ही विल डू समथिंग, बिकॉज अभी तक तो उन्हें कोई नहीं मिल रहा, दे आर हैविंग एक्सट्रीम डिफिकल्टी। I'm just curious, So there are two things happening here. Number one, कि प्रोमो में उन्होंने पहले तो दिखाया है कि उसको पता चल जाता है, he sees कि ये एलिफ है यहाँ डोनर लिस्ट में, ठीक है। Number one, कि this Ghazi Yusuf is now warming up to Elif and he seems to be genuinely grateful to her for being with his son, ठीक है। And they're in it together and they're saying कि नहीं, we are one team. लेकिन on the other hand, when he does find out and उसकी desperation भी दिखा रहे हैं साथ साथ कि वो कितना, I mean, he's never been like this, he's a changed man. At the same time, उसकी जो conversation एलिफ की औरंगजेब के साथ होती है, she said कि तुम सुनो। अब उसने सुनो में सिर्फ, मुझे लग रहा है सिर्फ ये नहीं कहा है कि तुम वहां की डोनर लुक्स देखो और सेहान का नाम आगे करो, मुझे लग रहा है कि उसने ये भी कहा है कि किसी तरह मुझे somehow she's ready to lay down her life, जिस पे औरंग कहता है कि ये तो बिल्कुल सुसाइड या इस तरह कुछ कहता है, यू कांट डू दिस टू योरसेल्फ। He didn't say yourself, but उन्होंने वहां छोड़ दिया। So do you think she's already thinking on those lines? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मे बी आई मिस समथिंग। मुझे ऐसा लगा औरंग उसको कह रहा है कि जो तुमने शादी कर ली और जो तुम ये कर रही हो, ये तुमने सुसाइड किया, तुम ये नहीं कर सकती, यू शुडंट हैव डन दैट। और वो उससे हेल्प मांग रही है, कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ की सब लिस्ट पे देखो, इसका नाम डलवाओ, कुछ करो, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बड़ा डेटा मिल जाएगा आपको, यू स्टेपिंग आउट ऑफ द लोकल रिजीम। तो मुझे वो लगा, मे बी आई मिस समथिंग। मुझे नहीं लगा कि उसने अभी ये बात सोची होगी टू डू दैट। और मुझे लगता है कि, और सॉरी, मुझे लगता है ऐसी मोहब्बत कोई दिखाई भी नहीं है, या तो फिर वो इतनी डेप्थ दिखाए मोहब्बत की जिधर वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो। अभी उनकी ऐसी मोहब्बत तो कोई नहीं दिखाई, बल्कि वो तो डबल माइंडेड थी कि शादी करूँ नहीं करूँ,
उससे। उस वक्त तो डबल माइंडेड थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वो बीच बीच में डायलॉग्स फेंक रहे हैं, वो कह रही है कि नहीं हम हमेशा साथ रहेंगे, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, व्हिच ऑब्वियसली मींस हर हार्ट इज गोइंग टू बी लिविंग इनसाइड हिम एंड ही, तो वो इतने ज्यादा हमें फीलर्स दे रहे हैं दैट मे बी आई एम पुटिंग टू एंड टू टुगेदर एंड यू नो दैट्स नॉट वेयर शी इज गोइंग। कुड बी। तो वो क्यूरोसिटी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है और आप सोच रहे होते हैं कि क्या होगा। फिर उसके बाद औरंग का क्या रोल होगा, वो कितना इसकी मदद करेगा, क्या नहीं करेगा। फिर अभी उसकी दूसरी बहन भी आ जाएगी, इल्हाम भी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि टर्की में इल्हाम जो है वो फ़ोन पे उनको देख रही है या कुछ कर रही है, यू नो। तो दैट्स अनदर ट्विस्ट दैट्स गोना हैपन। तो काफ़ी कड़ियाँ हैं उसकी जो मिलनी है ड्रामे की, जो आपको मज़े की लगती है। लेकिन बस वही बात होती है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वो इतना खिंचा हुआ और इतनी सेंसेशनल चीज़ें जो होती हैं वो डाल के वो ड्रामे को बिल्कुल नीचे के लेवल पे ले आते हैं, रादर देन बीइंग अ रियली क्वालिटी ड्रिवन ड्रामा जिसकी स्टोरी एक्चुअली बहुत अच्छी है, यू नो। या बिकॉज यू सी, अब जब वो बीच पे गए थे और वो गिर गया था, आई थॉट ही इज गोना लैंड अप इन द हॉस्पिटल नाउ, लेकिन वो फिर भी रह गया, उसने उसको दवाई दी। फिर आगे जाके 2-3 एपिसोड दिखाएंगे। सो नाउ वी सीन यू मेड द फैंस हैप्पी विद, यू वांटेड टू शो द लव, नाउ यू आल्सो शोन दैट ही इज इन अ प्रिकेरियस पोजीशन रिगार्डिंग हिज हेल्थ, सो टाइम टू मूव ऑन एंड ब्रिंग इन द सेकंड एलिफ इन द पिक्चर, आई फील। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ वी कैन डू लीडर। वी कैन डू लीडर, यस। सो लीडर मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। मुझे वो पुरानी वाली कहानियाँ याद आ जाती हैं जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर यू नो जालिम समाज बीच में आ जाता है, फिर वो भाग जाती है या वो झूठ बोलती है, यू नो। तो छुप छुप के मिलना, प्लानिंग करना, इस तरह की वो मुझे ना सारा वो बड़ी नॉस्टैल्जिक फील आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे बड़े मज़े का लग रहा था वो। लीडर इज फन टू वॉच बिकॉज आई एक्चुअली थॉट उन्होंने प्रोमो ऐसे दिखाया था, आपको थोड़ा सा यू नो क्यूरियस कर दिया था क्यों ना है, बट एक्चुअली वो तो सिर्फ पुराने ऑफिसेस उसको लेकर आया था। एंड आई थिंक ही जेन्युइनली बिलीव्स दैट यू नो शी इज जेन्युइन अबाउट हिम। लेकिन फिर वहां से दादा साहब के कॉल्स आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि क्या मंसूर घुमाएगा रुबाब को, या वो जेन्युइनली कहेगा कि अच्छा ठीक है दिस गर्ल लव्स मी, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वो उधर से आ रही है, ये इधर आ रहा है, और वो कह रहा है कि फिर तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा पीछे। सो आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि अब इनकी किस पॉइंट पे लड़ाई होगी, जो होगी, एंड देन शी विल स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट हिम। नहीं तुमने प्रोमो नहीं देखा ना? पता नहीं, शायद नहीं देखा। प्रोमो में उससे वो दादा साहब पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारे लिए अब कुछ भी कर सकती है, तो वो कहता है वो स्टेज पे भी पहुंची नहीं है, तो कहता है फिर स्टेज पे लेकर आओ। तो हाँ, तो मंसूर इज़ नॉट जेन्युइन फॉर श्योर। मंसूर उससे बदला लेना चाहता है। मंसूर क्लियर है, मंसूर को जो इस बात का एहसास हुआ है ना कि मेरा मजाक उड़ाया, इसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, वो रुबाब की एक्सप्लेनेशन भी दूर नहीं कर सकी, यू नो। मे बी रुबाब कुछ ऐसा करे जिससे उसको ये प्रूव हो जाए कि रुबाब वाकई उससे प्यार करती है, तो वो करे। बट अभी तक तो मंसूर उससे जेन्युइन नहीं लग रहा। ऑल्सो वो लेकर भी यूआईपी के ऑफिस उसको इसीलिए लेकर आया था क्योंकि वो उसके माइंड के साथ खेल रहा है। सी, रुबाब को मैं ये सोची थी शादी, रुबाब ना बीच में फंसी हुई है। एक तरफ मंसूर है जो उसके उसके इमोशंस के साथ और उसके दिल के साथ और उसकी यू नो सेंस ऑफ जस्टिस के साथ खेल रहा है कि देखो हम तो इतने गरीब से, हम तो बेचारे हैं, ये हमारा ऑफिस है, ऐसे सोफे पड़े होते हैं, हम कैसे बुरे हो सकते हैं, यू नो। वो उसकी माइंड पे खेल रहा है। फिर दूसरी तरफ उसका बाप है, जहाँ वो अपने बाप की तरफ जा रही है और बाप से जो उसकी अटैचमेंट है या बाप की जो इमोशनल और पावरफुल कनेक्शन है वो उसके ऊपर कर रहा है। अब इधर बाप ने भी कहानी सुना दी उसको कि तुम्हें पता है मुझे गोली किसने मारी थी, मुझे दादा साहब ने गोली मारी थी। तो इधर से बाप भी करे। सो देयर इज सो मच you know inflow of information in Rubab's head, and this information is fighting with each other, you know, one side with the other side. सिर्फ मुझे ये चीज़ लगती है कमी, आई डोंट नो इफ़ यू फेल दैट, कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यहाँ से मंसूर का इमोशनल अटैक हो रहा है, यहाँ से बाप का हो रहा है, बट आई फील कि रुबाब को इतना तो इंटेलिजेंट दिखाते, इतनी तो उसमें डालते कि वो खुद रिसर्च कर रही है, वो खुद मालूम कर रही है। उसको क्लियर होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ माय फादर स्टैंड फॉर, व्हाई हैज़ शी नॉट फाउंड आउट हर सेल्फ कि यूआईपी और उसके बाप की जो पार्टी है उनके दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट है। किसी से जाके पूछे, कुछ रिसर्च करे, कुछ करे। उसको वो जो बिल्कुल उसको एक सुन सब दिखाया, रो रही है बेचारी, वो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। आई वांटेड टू सी दिस साइड ऑफ हर, यू नो। अच्छा, मुझे लग रहा है एक्चुअली कि रुबाब अभी इज दिस वन सिंपल गर्ल हु इज जस्ट इन लव, शी डजंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स। और राबिया, हमारी दोस्तों में भी ऐसे लोग होते हैं ना हु कुडंट केयर लेस अबाउट पॉलिटिक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली रुबाब इज इन दिस फैमिली जहां पॉलिटिक्स डिस्कस होती हैं। लेकिन अब वो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे ना, विच आई एम एक्सपेक्टिंग यही होगा
तब उसको जाके एक शऊर आएगा, एक अवेयरनेस होगी, एंड तब जाके उसको जो तुम कह रही हो ना, दैट शुड हैपन, बट दैट्स व्हाई द ट्रांसफॉर्मेशन विल एक्चुअली बी इम्पैक्टफुल, बिकॉज अभी शी इज नॉट दिस पर्सन एट ऑल, बट समथिंग इज गोइंग टू ड्राइव, उसको पता चलेगा कि बेवकूफ बना रहे हैं या कुछ भी, विच इज गोइंग टू ड्राइव हर टुवर्ड्स दैट। पर शाज़िया सिंपल होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आपकी क्यूरोसिटी नहीं है। आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है शायद इस वक़्त। लेकिन उस पे भी मुझे इश्यू है हम्म। क्योंकि उसके बाप ने उसको तैयार इसलिए किया है। उसके वो पॉलिटिकल समथिंग पढ़ रही थी ना उस यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल साइंस या क्या जो भी चीज़ पढ़ रही थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको, या फिर आप दिखाते कि वो स्पॉइल्ड है, पैम्पर्ड है, उसको कुछ पता नहीं है और वो पता नहीं कोई फैशन डिज़ाइनिंग या फिर वो कोई बिज़नेस का कोर्स करी जिसका उसके बाप या उसकी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं दिखाया। तो इसलिए मुझे अजीब-सा लगता है। चलो फिर मैं कहती हूँ इसको मैंने बर्दाश्त कर लिया, पॉलिटिक्स ही दिखाएँ। लेकिन सिंपल होने का मतलब ये तो नहीं कि जब आप एक बीच में दोराहे पे खड़े जहाँ पे आपकी आपकी मोहब्बत और आपके बाप की जो इमोशनल अटैचमेंट है वो दोनों क्लैश करिए। वुडन्ट यू फाइंड आउट हुआ क्या था, कौन सही है, कौन गलत है, तो टू मेक अ बेटर डिसीजन या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आल्सो जस्ट फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, व्हाई आर दे सो अगेंस्ट ईच अदर, कुछ तो, या फिर कुछ तो रिसर्च करे, कुछ तो आस-पास से भी मालूम करे ना। बाप जो कहता है वो बाप की सुन लेती है, जो मंसूर कहता है वो मंसूर की सुन लेती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो मंसूर के इसके लिए ना, शी इज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड विद मंसूर, शी इज इंस्पायर्ड बाय हिम, बट आई स्टिल फील कि ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, वो करेगी अब रिसर्च, आई मीन करना चाहिए, अगर वो आगे उसकी ये दिखा रहे हैं जानी, फिर नहीं करेंगे तो आई विल हैव एन इशू। अभी आई सीम टू बी ओके विद द फैक्ट दैट शी इज ऑल स्टारी आईड एंड शी जस्ट वांट, प्लस वो भी तो बैठा हुआ है उसके बराबर में, वो आसिफ, he's so annoying, and I love the interaction between her and him, she just cannot stand him. कि बाप के सामने तो वो चलो शी गिव्स इन, उसने सारे हथियार डाल दिए, उसने कहा मैं साइन कर रही हूँ, क्या करूँ मैं, रोबोट टू रोबोट बन जाऊंगी, आपको जो कराना है करा लें, लेकिन उसको वो जो है ना, शी डजंट गिव हिम एन इंच, सो आई थिंक शी इज बैटलिंग विद अ लॉट राइट नाउ। आई थिंक उसने बड़ा अच्छा दिखाया था, मुझे वो जुमला बहुत अच्छा लगा कि मेरा बाप एक ही है। आई थिंक दैट वाज़ रियली गुड जो उसने बोला ना, या वो बड़ा इम्पैक्टफुल था और बहुत मज़े का था। आई थिंक उससे बड़ी लड़कियों ने उससे रिलेट किया होगा कि हाँ भाई, वो तमाम मर्द जो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, टू टेल देम कि भाई हमारा बाप एक ही है, हमारा बाप बनने की कोशिश नहीं करो। बड़ा ना अच्छा उसको राइटर ने और डायरेक्टर ने और खिंजा ने उसको किया और परफॉर्म किया, वो मुझे अच्छा लगा था। देन ऑल्सो आसिफ का जो अब चल रहा है ना, अच्छा अभी उसकी थोड़ी-सी शिफ्ट दिखाई, मुझे लगा कि जब आसिफ ने जाके उसके बाप से बात की होगी ना ख्वाजा से, तो वो इसको नहीं घास डालेगा, लेकिन एक्चुअली बड़ी वो पेशेंस से बात करता है और वो उससे कहता है कि कुछ चीज़ें उसको समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आती, और वो उसको एक्सप्लेन करता है। आई वाज़ थिंकिंग इसको फिर साइड पे लगा देगा। लेकिन उसने झूठ बोला था, आसिफ ने उसके अब्बा से, उसने कहा था कि मैंने अपने बंदे अंदर भेजे बुक स्टोर में, एंड उसने आने नहीं दिया, विच इज नॉट राइट बिकॉज दे वेंट इन। नहीं, शुरू में उसने नहीं आने दिया था ना, शुरू में तो। बाद में तो आने दिया था, वो तो उसने स्किप कर दिया ना, मतलब उससे तो मुझे लग रहा था कि शी इज डूइंग अप टू समथिंग एंड शी इज नॉट लेटिंग द मैन इन, व्हिच शी वाज अप टू समथिंग, बट द मैन डिड, अच्छा मुझे लगा कि ही कवर्ड अप, ही लाइड। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अब अगली किस्त का प्रोमो बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ हुआ है जो आई थिंक इसके बाप को पता चल जाएगा, या कुछ हुआ है वो आके उसको मारता है। तो अब यही बात है कि एज़ आई सेड कि लीडर की मुझे यही चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि इट कीप्स यू हुक्ड, और हर बार वो एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ते हैं या प्रोमो में ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार अब क्या होगा। तो शाहिदा को तो उसने बुला लिया अपने पास गाँव से भाई ने। यस, मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि बात भी करने की कोशिश नहीं की पेरेंट्स से कि उसकी शादी अभी नहीं करे, ना रशीदा ने ना मंसूर ने। या एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो जो उसकी अम्मी ने कहा कि ये पर्चा मिला था कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, कह रही थी कि मैं भाई के पास जा रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली मंसूर वाज राइट, तुम मेरे पास आ रही हो, तुम घर से तो नहीं भाग रही हो, चाहे कुछ भी लगे, एटलीस्ट मोहल्ले वालों को सबको तो वो कह सकते हैं कि भाई भाई ने उसको एकदम से बुला लिया, कुछ भी, एंड वो पर्चे में यही, बिकॉज फॉर अ गर्ल टू से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे राबिया समझ नहीं आया, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट why is she so, because that रिश्ता sounded okay to me, and कोई बाप मुझे इतना evil भी नहीं लग रहा था जब वो प्लान कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों, why could she not talk to them, or why was it such a big thing that she had to leave the house and run away? यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि चलो रिश्ते की तो मुझे समझ आती है, वो नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है, जो उसने अपने भाई को भी बोला। लेकिन ना भाई ने बात की, ना उसने बात की, ना ही बाप का ये दिखाया कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है या कुछ, या अगर पहली एक साथ में कुछ था तो वो मुझे याद नहीं है। तो मुझे भी अजीब-सा लगा, बड़ा मुझे तेज़ लगा, फ़ास्ट फॉरवर्ड, लाइक मुझे टू अब्रप्ट लगा
कि ये चीज़ हो गई, you know. मुझे वैसे उनको सॉल्यूशन बड़ा अच्छा लगा था कि हॉस्टल में इसको एडजस्ट कर दें मेरी शाहिदा के साथ, फिर बाद में देखा जाएगा, बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो वंडरिंग कहाँ रखेंगे, कभी जेल में होता है, कभी बाहर होता है। तो नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक, एंड आई होप दे डू शो कि द वुमेन्स ग्रुप और द गर्ल्स ग्रुप आल्सो, उनको भी थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए ना, अभी तो सिर्फ आदमियों को ही दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे यही हो रहा था कि ये तो बहुत खतरे वाली बात है जो उसने अपनी बहन को बुला लिया, बिकॉज ये तो अब और उन लोगों को चीज़ें दे रहा है कि कहीं बहन के साथ कुछ कर दो जब उन्हें पता चलेगा। एंड वही तुम्हारी बात कि रखेगा कहाँ। खैर मुझे ये था कि पैसे तो ये यूआईपी वालों से ले सकता है, मांग सकता है कि भाई मुझे दो, ये इतना बड़ा कारकुन है उनका। बट यू थिंक कि ख्वाजा की जो बात थी कि ये इसी तरह लोगों को यूज़ करता है दादा साहब, और फिर उनको उनकी गरीबों का फ़ायदा उठा के वो कर देता है, और मंसूर को सिर्फ इसलिए अटेंशन दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि तुम इन्वॉल्व हो इसके साथ। देखो, नाइदर ऑफ देम इज टोटली राइट, क्योंकि उसकी भी हिस्ट्री है यूआईपी वाले की, उसके अब्बा की, रुबाब की। उन्होंने भी बता दिया था कि ये पहले मेरी पार्टी में था, इसके साथ ये हुआ था, फिर इसने गोली मारी थी मुझे, तब मुझे समझ आया। एंड वो दादा भी कहीं से तो जेन्युइन होंगे, लेकिन अब जाके वो भी ट्विस्टेड हो गए हैं। So my thing is that now he's very twisted and he is using Mansoor. I'm quite sure he's using Mansoor, क्योंकि उसको तो पहले से पता था, उसने मंसूर को नहीं बताया कि रुबाब इनकी बेटी है। एंड ये एक्चुअली इसको सही आगाह कर रहा है, रुबाब का अब्बा सही आगाह कर रहा है। नहीं, बट आई थिंक शाजिया, मंसूर को वो पहले से ही नोट कर चुके थे बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रीट पावर। ये तो एक एडेड बोनस उनको मिल गया। आई डोंट थिंक ही इज कॉलिंग मंसूर जस्ट बिकॉज ऑफ रुबाब। I think that street power, yes, you're right, was there, and he saw that and he picked him up. But then now this is Sone पे सुहागा के, बिकॉज ये तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा, एंड ही इज, या तो वो बता, अब वो तो, लेकिन आई थिंक अब वो बता के कर रहा है, जो तुम प्रोमो में बता रही हो, अब वो दादा को बता रहा है कि ठीक है, नाउ वी आर इन दिस टुगेदर, नाउ वी आर गोइंग टू यूज हर, वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट हर। उस वक्त तक ही हैड नॉट टोल्ड हर हिम इन द बिगिनिंग। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज विंटर लव। ओके, जी, तो भाई इतनी मिसकम्युनिकेशन आपस में, वो खड़े हुए थे वहां रिंग के साथ, और वहां वो फूलों के साथ बैठी हुई थी, और फिर वो नाराज हो गई, लेकिन डिड दे एक्चुअली हैव एनी कन्फेशन बिटवीन देम दैट दे लाइक्ड ईच अदर एंड दे वांटेड टू बी विद ईच अदर, और या उन्होंने दिल दिल में ही उन्होंने सोच लिया था दैट दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी? नहीं, वो अच्छे से बात कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो शी फील्स के, और फिर उसने उसको लिस्ट दे दी, तो वो थोड़ी वल्नरेबल फील कर रही है मुश्क, इसलिए उसको बहुत बेइज्जती का एहसास हो रहा है। प्लस कोई आपको ऐसे वो करे तो वो आपको बुरा ही लगेगा। एंड हयात इज़ ऑल्सो फीलिंग बैड दैट ओ मैंने इसको सही बात नहीं बताई। बट माई क्वेश्चन इज़ कि उन दोनों को पता था कि वो किनको मिल रहा है। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट आई रिव्यू ऑल्सो लास्ट वीक कि हमने इस बात को नहीं किया, बट उसको भी पता था कि किस नाम के बंदे से वो मिलने आ रही है, इसको भी पता था किस नाम के बंदे से मिलने आ रही है। या तो फिर उन्होंने ये अज्यूम किया कि ओ इन्होंने ऐप्स पे डिफरेंट नाम रखे हुए हैं, ठीक है, या तो ये हुआ। तो वो मुझे अजीब सी बात लगी, हज़म नहीं हो रही थी मुझसे कि ये अब क्यों परेशान हो रहे हैं, मतलब ये आपने इसकी कोई जस्टिफिकेशन सही दिखाई नहीं, और आई मिस्ड इट, यू नो। या आई थिंक दैट दे अज्यूम कि ऐप्स पे डिफरेंट नाम रखे हुए, ऐसा कुछ था, बट इट वाजंट क्लैरिफाइड प्रॉपर्ली टू मी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो इनके जो अब टू बी मंगेतर जो होने वाले हैं मुश्किल, इसमें कोई रेड फ्लैग है जो अभी नजर नहीं आ रहा? बिकॉज से ऑब्वियसली हैज टू बी अ वेरी बिग रेड फ्लैग नाउ फॉर द सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ टू से नो। शाजिया, स्टार्ट ही रेड फ्लैग से हुआ है। मतलब वो आया है, बैठा है, ठीक है, और वो बैठने के 2 मिनट के बाद उसने उससे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो उसको गाड़ी तक लेके गया, और गाड़ी में कहता है मेरी तरफ से तो हाँ है, मैं तो आपसे बड़ा इंप्रेस हो क्यों, कभी कभी किसी मुलाकात में इंप्रेस हुआ। आई वाज लाइक व्हाट, 5 मिनट तुम उसके साथ बैठे नहीं हो, तुमने कॉफ़ी नहीं पी, तुमने तो उससे एक बात नहीं की, तुम जानते नहीं हो उसकी हालत ख़राब है, वो परेशान लॉस्ट लग रही है। हाउ कैन यू लाइक समबडी लाइक दिस? सो दैट वाज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। एंड देन ही इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग फॉर शादी। सो मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ा पीछे कोई मसला है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही था, और मुझे नहीं समझ आई कि ड्रामे ने ये कैसे दिखा दिया ये, यू नो, देयर इज नो बिल्ट अप। वो कुछ छुपा रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ। बाय वो तो उसकी सारी जो बातें थी वो तो थी गलत, लेकिन वो गलत भी थी, लेकिन वो उसको अपने आप को कन्विंस कर रही है कि हाँ यू नो इसको भी ये सफाई पसंद है, ही इज वेरी पर्टिकुलर कि भाई तकिया भी शेयर नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन देयर इज समथिंग बिगर, क्योंकि देखो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे बड़े जो है उसकी बहन, और वो इसको रेड फ्लैग नहीं समझेंगे कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं। दे विल नॉट थिंक इट्स ये तो मैं और तुम देख रहे हैं एंड वी कैन सी व्हाट्स गोइंग। अगर वो जाके कहेगी भाई वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, वो दूसरी बहन ने ये भी नहीं सोचा कि वो फौरन कैसे आमादा हो गया। देयर हैज टू बी समथिंग बिगर व्हिच ही इज हाइडिंग और हिज फैमिली इज हाइडिंग, एंड दैट नीड्स टू कम आउट। नहीं देखो, वो आमादा होना मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं है, बट
टू से कि मुझे आप इम्प्रेस करिए। मतलब अगर उन्होंने एक लंच साथ किया होता, 1 घंटा गुज़ारा होता, दे वुड हैव गॉटन टू नो ईच अदर, कोई कन्वर्सेशन हमें लगता है कि हुई है, तो मुझे समझ आती कि कोई मोहब्बत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है यार ये जो पोटेंशियल इंसान है, ये अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है, या हाँ, मैं इससे शादी के बारे में सोच सकता हूँ, तो वो फिर आप बात आगे ले जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू फॉल इन लव और एनीथिंग। तो जल्दी का फैक्टर, अगर आप मुलाकात की डिटेलिंग या कुछ दिखा देते विदाउट हैविंग लव इन्वॉल्व इन इट, समझ आती। लेकिन यहाँ तो आपकी बात ही नहीं हुई, 5 मिनट की तो आपकी बात हुई। अच्छा, फिर वो उससे कह रही है उससे बिफोर वो डिनर पे आता है ना, फिर दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे तीसरे दिन, वो दिन बाद, कुछ दिन बाद वो डिनर पे आता है। उससे पहले वो उससे कहती है मुश्क मीरम से कि ये पता नहीं अपनी बहन से, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो इसी तरह परफेक्शनिस्ट है, ये तो बिल्कुल ऐसा है, और मैंने हयात के उसमें, अरे भाई तुम तो जानती नहीं हो, मिलती नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे जैसा है? टिल द डिनर टाइम, हाँ, सो मुझे ना गैप लगा, या तो एडिट में कोई चीज़ें थी जो उन्होंने नहीं डाली, देयर वर सम सीन्स दैट वर रिकॉर्डेड और वो एडिट में नहीं डाले, और अगर ऐसा नहीं है कि एडिट में नहीं डाले सीन्स थे और ये ऐसे ही है, तो ये बहुत बड़ा लूप है एग्जीक्यूशन में, विच आई एम कॉन्स्टेंटली हैविंग दिस इशू विद द ड्रामा, यू नो, दैट के एग्जीक्यूशन में script becomes really really weak, you know. Yeah, I think if you have got something that I actually didn't notice because I assumed that that is the way he was, and if they have not had this conversation, then I agree with you. They should have, because मुझे उसकी वो वाली बातें स्ट्राइक करी कि जी ग्लास दूसरा ले, मुझे साफ ग्लास चाहिए, मैं शेयर नहीं कर सकता, जो यू राइट वो डिनर के बाद हुई थी कॉन्वर्सेशन, पहले नहीं हुई थी। या एंड यू आर सेइंग कि मीरम से उसकी पहली कॉन्वर्सेशन हुई थी कि मेरी तरह है बिल्कुल। हाँ, मीरम मीरम से, या फिर बहन से, या बहन अपने भाई से, कहीं कहीं ड्रामे में ये कॉन्वर्सेशन हुई है वेयर शी इज सेइंग कि ये तो बिल्कुल उस जैसा ही है, उसी की तरह परफेक्शनिस्ट है, उसी तरह सिविक सेंस इसकी बड़ी अच्छी है एंड ऑल दैट। और वो जब वॉक भी करी होती है मीरम से, तो वो कहती है कि उसको डाउट हो रहा होता है कि क्या मैंने सही किया, बिकॉज ही इज लाइक मी एंड हयात, तो यू नो, बट हयात के रिएक्शन में तो मैं नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग कि मुझे हयात की एंड इसकी इस लड़के की स्टाइलिंग में जो फ़र्क है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे वांटेड टू शो, दैट डिफरेंस, एंड आई गॉट दैट, यू नो, शिगरी इज़ प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड वो पूरा अपने सूट के साथ वो परफेक्ट बिल्कुल लग रहे हैं, एंड हयात इज़ योर, यू नो, थोड़े से लॉस्ट एंड थोड़े से, यू नो, केयरलेस एंड एवरीथिंग, सो आई लाइक व्हाटएवर दे वर ट्राइंग टू शो, दैट केम आउट वेल ऑन स्क्रीन। अच्छा, रेड फ्लैग वहाँ से भी हो सकता है, वो कुछ बात करता है जब उसके ऑफिस आता है ना, तो कुछ बात करता है, तो वो परफेक्शनिस्ट या उसकी बात करता है, तो वो उससे कहती है परफेक्शनिस्ट होना ये नहीं वो नहीं, तो वो उसको कुछ जवाब देता है, जहाँ मतलब उसने कोई बात बोली थी फातिब ने, जो मुश्क ने निगेट की थी या क्वेश्चन किया था, तो वो भी मुझे थोड़ा सा लगा था कि यहाँ से भी मुश्क को थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। मैं कह रही हूँ एक्चुअली दिस विल बी एन आई ओपनर फॉर मुश, बिकॉज शी विल रियलाइज कि इफ शी इज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज एग्जैक्टली लाइक हर, दैट्स प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया जब तक वो इस जर्नी के थ्रू जाएगी नहीं। सो आई होप दे मेक दिस जर्नी अ लिटिल डीपर, उसको समझ नहीं आएगा कि व्हाई इट्स नॉट राइट। फिर उन्होंने वो 4 पता नहीं कि 6-7 मुलाकातें दिखाई बिटवीन मुश्क एंड हया, जहाँ वो कुछ बात नहीं कर रहे, बस उस लिफ्ट आती है, ऊपर जाते हैं, दोनों की एक साथ हो रहा था। वो क्यूट भी था, थोड़ा-सा लंबा लगा, मुझे लगता है छोटा कर सकते थे, लेकिन म्यूज़िक पीछे लग रहा था, गाना था, ओएसटी था कहीं-कहीं, तो वो अच्छा लग रहा था। पता चल रहा था कि हाउ दे आर ट्राइंग टू अवॉइड ईच अदर बट दे आर आल्सो फीलिंग समथिंग फॉर ईच अदर, वो फीलिंग की एक्जिस्टेंस का पता चल रहा था। Yeah, I also like the way they executed that. It was nice, and it sort of like added a little different, uplifting feel pace to the episode. हयात के अम्मा की मुझे समझ नहीं आ रही, वो बहुत टिपिकल कैरेक्टर है कि उन्होंने ना इधर देखा, उधर देखा, उन्होंने उसको सोहा को बोला हयात तुम्हें लेने आ रहा है, और अब्बा कह भी रहे हैं, तो वो एक वहाँ पे टिपिकल चीज़ नज़र आती है, विच आई विश दैट दे हैड अवॉइडेड। और मुझे यही हो रहा है कि अब ये जब अपनी मंगनी तोड़ेगा सोहा से, तो बेचारी सोहा विल बी कोलैटरल डैमेज प्रोबेबली, यू नो। और मुझे सोहा अच्छी लग रही थी। I liked her, and I like the fact that the story has made this effort to show कि वो पहले एक दूसरे को जानते थे। तो अब जो familiarity मैं देख रही हूँ उनके बीच में, वो अच्छी लग रही है। It's not coming out of the blue एकदम से कि भाई ये क्यों इतनी फ्री हो रही है या ये क्यों इतना एक्सपेक्ट कर रही है। So they had a nice friendship going and they remembered that. So ये मुझे, because this is different from what most dramas do, तो मुझे ये कहानी अच्छी लग रही है। बल्कि वो जो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो गिर जाती है और फिर वो कहती है आइसक्रीम खिलाओ, वो भी बड़ा अच्छा सीन था, वो मज़े का था, वो बोरिंग नहीं था। अक्सर ऐसे सीन्स बहुत बोरिंग होते हैं और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस तरह के थर्ड कैरेक्टर्स में, लेकिन वो अच्छा था। सोहा, आपको यू आर राइट, सोहा में एक लाइकेबिलिटी, आपको सोहा अच्छी लग रही है। फातिर मुझे रेड फ्लैग या कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे वहाँ से आ रही है, बट सोहा के बारे में आई एम क्वाइट, आई फील बैड कि बेचारी के साथ बुरा होने वाला है। फिर
then coming to Zark and Meeram, I find that मुझे अफसोस होता है कि वो ट्रैक बिल्कुल जो है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि उन दोनों की वो मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आप उनको किस ब्रैकेट में रखना चाह रहे थे। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे हैं, वो मतलब वहाँ बिल्कुल बचकानापन सा आ गया। फिर गाड़ी में निकलते वो साइड पे दोनों अपना-अपना फ़ील कर रहे हैं। ये मतलब you can't decide कि which category they are. Are they teenagers? Are they young adults or adults? What is going on? I'm very confused about that, you know. They are just out of everything. Out of character कहूँ मैं, out of casting कहूँ मैं, out of whatever they're trying to play. This could have been such a fun, two people having so much fun with what is happening with Mushk and Hayat. They haven't. मुझे तुम ये बताओ, जब वो गाड़ी से उतरी तो उसने वो दुपट्टा क्यों पहना अपना बाद में? Were they trying to show that she wasn't, where she takes the dupatta off and she goes out and then what was the point of showing that? मुझे समझ नहीं आया. I guess यही होगा, मैं भी यही बात सोची। मैं समझी पहले सर पे लेके, लेकिन उसने सर पे नहीं लिया, बस उसने she just put it on herself. समझ नहीं आया मुझे. Yeah. I like भाई की conversation, जो भाई ने उससे कहा सच सच बताना, जो भी है झूठ नहीं बोलना। I am there for you, you know, so I like it. लेकिन भाई तो तैयार है उसकी शादी करने के लिए। इसका मतलब है कि she is probably marriageable age। सिर्फ again very typical drama थिंक कि अगर वो नहीं आए उसकी पेरेंट्स, तो फिर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा, विच मीन्स शी इज मैरिजेबल एज। लेकिन अगेन द टिपिकल थिंग कि भाई एक धमकी कि अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं तो वो जरूरी है प्रेशराइज करना लड़की को। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज डॉक्टर बहू। ओके, डॉक्टर बहू जी। सो लॉट्स हैपनिंग इन डॉक्टर बहू एंड आई थिंक कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में दर्द होने लगता है। एवरीथिंग दैट सानिया हैज टू डील विथ, इट्स अ लॉट शी इज टेकिंग ऑन। फिर मुझे गुस्सा आता है सलमान के ऊपर व्हेन ही गेव एन एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द पार्टी कि भाई कैन यू सी व्हाट दिस गर्ल इज डीलिंग विथ एंड व्हाई आर यू शोइंग हर एन एटीट्यूड? डिड यू गेट एंग्री एट हिम? नहीं, मैं तो सलमान के साथ थी बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो सलमान के साथ थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा शाज़िया कि द ड्रामा इज एक्चुअली शोइंग अ वेरी रियलिस्टिक एंड स्लाइटली डिफरेंट रिलेशनशिप डायनामिक्स। कि देखो सानिया जो है उसको लगता है वो विक्टिम है और सब बुरा हो रहा है, ठीक है। नाउ देयर इज दिस पर्सन सलमान हु सपोर्टिंग यू, बट कभी कभी आप अपने दुख में ना दूसरे के साथ ज्यादती कर जाते हैं, दूसरे के साथ को विक्टिम बना लेते हैं। जो फिर सलमान ने आवाज़ उठाई कि तुम मेरे साथ ही करो, तो मुझे ना वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी। हम तो सानिया कर रहे थे ना। इवन आई डेंट थिंक कि बेचारे सलमान का बिग डे है, सलमान इज ट्राइंग टू हैव अ गुड डे, ये वो, एंड सानिया ने अपने प्रेशर, अपनी सारी चीज़ में उसकी एक चीज़ को बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो मुझे तो ये सारी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। ओके, मुझे सिर्फ ये लगता है कि एज पीपल, इवन एज अ वुमन एज सानिया इज, हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम अपने इन लॉज को खुश रखें। शी हैज no reason why she needs to manage that dinner and be a perfect बहू। ओके, एंड ये सलमान की बात सही थी कि तुम परफेक्शनिज्म हर चीज में ढूंढ रही होती हो, बट यू हैव टू सी वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। क्यों कर? शुरू में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था हाउस होल्ड की किसी भी चीज में, लेकिन अपनी अम्मा की टॉक्सिसिटी वजह से, इसके सलमान के अब्बा की टॉक्सिसिटी, एंड सलमान फादर इज नॉट समवन दैट एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, भाई तुम खुद नहीं डील कर सकते अपने अब्बा से, तो वो कैसे डील करेगी उसके साथ? सो आई फील दैट शी इज इन द मिडल ऑफ दिस टॉक्सिक माहौल। या तो फिर उसको ले जाए ना, उससे क्या, हम अलग घर, हम नहीं रह रहे यहाँ, रहना भी उन्हीं के साथ है एंड देन टॉलरेट भी करना है सब कुछ, और फिर उसका मूड भी नहीं खराब हो। सो व्हाइल आई गेट व्हाट हैपेंड विद सलमान, आई फील सानिया इज इन टू मच trouble right now for her to deal with everything. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है अब इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। मीना ने भी उसको बोला कि तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से, लेकिन वो निकल भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात है उसके लाइसेंस के कैंसिल होने की, उसकी चीज़ों को गलत तरीके से डील करने की, जो उसका ससुर जो है उसको बार-बार धमकी दे रहा है। दैट इज़ द होल इश्यू। तो मुझे नहीं लगता कि अलहदा होना विल बी अ सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो उसकी ईगो का मसला बन गया है ना अब डॉक्टर शाहनवाज की, राइट? So all the more reason that Salman should side with her then, knowing कि उसके अब्बा उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ, मेरे व्यू में आई एम विद सलमान, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सानिया इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सानिया फंसी हुई है, क्योंकि सानिया के ऊपर ना इमोशनल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।
अम्मा आती हैं, उसकी सास भी आई जो वो उससे कही थी दूसरे दिन इंटरव्यू है, तुम्हें क्या जाने की ज़रूरत है, और जब तुम्हें फैसिलिटी मिली है, ससुर ने आके उसको ब्लैकमेल किया और उसे बोला कि तो तुम्हारा नाम आ जाएगा ही नहीं। सो शी हैज़ सो मच गोइंग ऑन, बट हाफ ऑफ दिस शी डज़ नॉट टेल टू सलमान, ठीक है? शी ट्राइज़ टू हैंडल इट हरसेल्फ। ये मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। सेकंड, सलमान ने उसे कहा है, "भई तुम छोड़ दो।" तो फिर तुम छोड़ दो ना, तुम ये भी तो कर लो ना, तुम क्यों परफेक्शनिस्ट बन रही हो? तो मुझे लगता है कि आई एग्री विद यू कि सानिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, और देखो कभी-कभी इंसान ऐसा होता है कि वो अपनी नेचर से हट नहीं सकता। सानिया की जो नेचर है वो उसके मुताबिक चीज़ें कर रही है। लेकिन ये बात मैं कहूँगी कि उससे थोड़ी बहुत ज़्यादती हो गई सलमान की तरफ। जहाँ वो इन सबको देख रही है, उनको पूरा कर रही है, तो फिर सलमान को भी पूरा करे। हाउ इज़ हर ससुराल एंड सास-ससुर बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, द दावत कमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन सलमान? अगर फिर भाग रही हो तो फिर सलमान को फॉर ग्रांटेड मत लो ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं कंप्लीटली सानिया के अगेंस्ट हूँ या मैं सानिया को समझ नहीं हूँ। मैं उसकी सिचुएशन को भी समझ रही हूँ, एंड आई एम सेइंग शी इज़ इन अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द ड्रामा इज़ शोइंग, आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी दैट द ड्रामा इज़ शोइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक्स बिटवीन 2 पीपल, जो रियलिस्टिक भी है। वो नहीं है टिपिकल के कहीं से एक वैम्प आ गई और ये हो गया और वो हो गया, उसने झूठ बोल दिया। ये तो एक मुझे लगता है कि रियल लाइफ में शाज़िया लोग ऐसा फेस करते होंगे कि आपके अपने ऑफ़िस का स्ट्रेस है, मियाँ के ऑफ़िस का दूसरा स्ट्रेस है, या बॉयफ्रेंड या जिसके भी है, और फिर जब आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, नाउ दिस इज रिक्वायरिंग ईच वन ऑफ देम टू स्टेप आउट ऑफ देयर मिजरी एंड बी देयर फॉर ईच अदर। कैन यू बी दिस बिग? कैन यू हैव सच अ बिग हार्ट? तो मुझे ये बड़ा जो है ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हम बहुत दफ़ा मर्दों के दुख को, मर्दों की मुश्किलात को नहीं समझते, उनकी सेंसिटिविटी को नहीं लेते। तो फिर ये ड्रामा ये भी चीज़ दिखा रहा है थ्रू सलमान, वेयर ही इज वॉइसिंग आउट दैट आई आल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम योर वाइफ, just because from you, who's my wife, just because I'm a man and I'm supposed to be strong doesn't mean that I'm not feeling what is happening or what you're doing. ओके, आई गेट योर पॉइंट कि हम लोग मर्दों को सीरियसली नहीं लेते हैं बहुत दफा, लेकिन आई फील दिस इज नॉट द राइट टाइम that Salman needed to pick up. This is my view and that is your view. So we stick with that because I think मुझे अभी नहीं शाजिया, नहीं, तुम्हारा व्यू भी ठीक है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि देखो बीच में ना, अच्छा मुझे लगता है जो सलमान का शिकवा है मैं उससे एग्री करती हूँ, लेकिन बीच में मैं सलमान को ब्लेम करी थी जब वो बीच में मुझे लगता है कि सलमान की फॉल्ट थी, उसको दूसरी तरीके से हैंडल करना चाहिए। जब वो रात को ना अपने कमरे में वो कोऑर्डिनेट कर रही होती है, सलमान उससे कुछ करने की कोशिश करता है, तो वो कहती है नहीं, नहीं, एंड सलमान थोड़ा-सा ना उसको फॉर ग्रांट वहाँ पे ना उसकी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता कि चिल करो, तुम ये करो। अब एक बंदा जो इतने स्ट्रेस में व्हिच इज़ सानिया, अब आप उसको ऐसे बोलेंगी ना तो उसको तब चढ़ेगी, तो वहाँ मुझे लगता है कि सलमान को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड हैव रियलाइज़, क्योंकि ये कर रही है तो उसको मैं जितना कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उसकी चीज़ को मैं अंडरमाइन नहीं करूँ या ये नहीं कहूँ कि तुम इसको इतना क्यों इम्पोर्टेंस ले रही हो, ये हो ही जाएगा, नहीं भी हुआ परफेक्ट तो क्या? तो वहाँ मुझे सलमान की गलती लगी थी। And Rabia, I also feel that that's the person she is. She is a perfectionist. Look at how she aced the interview. बल्कि उसको उसी वक्त पता चला था कि सुबह मेरा 8 बजे इंटरव्यू है। अदरवाइज वो हंसी खुशी जा रही थी सलमान के साथ। तो ये भी तो उसने ऊपर से डाला ना इसके ऊपर। शी वाज डीलिंग विद दैट टू, और फिर वो तो चला गया, वो तो पूरी रात जाके अपनी वो कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी फॉर द इंटरव्यू इन द मॉर्निंग। सो आई जस्ट फील दैट वाज अ रॉन्ग, ही शुड हैव सपोर्टेड हर कि तुम्हारा इंटरव्यू है, इट्स ओके, आई नो आई फील बैड अबाउट माय डे, I feel that okay. I think we're going in round and round in circles, though. Yeah. No, but Shadi, that's okay because I feel that is the beauty of this relationship. पहले भी सलमान ने गलती की, फिर उसे सॉरी बोला और डिनर पे लेके गया। तो आई थिंक यही वो दिखा रहे हैं कि वो दो लोग एक दूसरे को इसी तरह समझते हैं, जानते हैं, डिस्कवर करते हैं एक दूसरे के बारे में चीज़ें हैं। क्योंकि उसको भी बुरा लगा जो सलमान ने उसको बात नहीं बताई थी फरियाल की, उसने कहा और उसको बुरा लगा, उसको फ़ील हो रहा है सानिया को। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई लाइक दिस रिलेशनशिप एंड द डायनामिक्स ऑफ इट बिकॉज़ दे आर रिफ्रेशिंग, दे आर रियलिस्टिक, दे बोथ आर नॉट परफेक्ट, दे आर बोथ मेकिंग मिस्टेक्स टुवर्ड्स ईच अदर ऑल्सो। जो उनके साथ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, दोनों विक्टिम भी हैं, बट वो एक दूसरे के साथ भी शायद कुछ गलत कर जाते हैं और ये उनका जर्नी है। सो मुझे इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, यू राइट, इट इज रिलेटेबल। अच्छा भाई, ये शाहनवाज साहब इतने क्लेवर हैं, यू सी, बिकॉज पहले मैंने सोचा जब ये डॉक्टर साहब को पुश कर रहे थे सुमेरा के लिए, मैंने कहा दिस इज सच अ रेड फ्लैग, शी शुड जस्ट से नो। हम आपस में करते हैं ना जब कोई ना कोई इस तरह रिश्ता लेकर आता है हमारे जानने वाले के लिए, हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत डेंजरस इंसान है, इनका नहीं। लेकिन क्योंकि उससे पहले वाली सीन में आपने देख लिया था हाउ नाइस ही वॉज, ही केम टू अ हाउस, मेट द मदर, सेड कुछ भी आपको चाहिए हो मैं मिलने बगैर नहीं जाऊंगा, सब कुछ अच्छा है, वो लोग सही नहीं थे, एंड देन ही स्प्रंग दिस, सो वी नो ही इज डूइंग दिस टू कंट्रोल हर,
and he will control her now. So it's so dangerous, but because of that scene before that, हम लोग थोड़े से ज्यादा उसकी फैमिली भी एंड ये भी थोड़ी सी सानिया भी बैकफुट पे आ गई है, तो ये उस तरह नहीं, बिकॉज ये कहती है कि यहाँ ये मेरे साथ ये कर रही है लेकिन वहाँ ये सुमेरा के लिए रिश्ता भी लेके आए, शी इज नॉट पुटिंग टू एंड टू टुगेदर. लेकिन मुझे नहीं लगता सानिया करेगी, सानिया बिकॉज शी इज़ गोइंग अहेड विद द केस, वो जो कैंसर वाला केस है शी इज़ गोइंग अहेड विद इट, जो ये एक्सपेक्ट नहीं करा था. मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे उसने, जब सानिया ने ये बात स्टार्ट की, रात को वो दोनों बैठे होते हैं डॉक्टर शाहनवाज एंड फ़हीम, तो उसने उसकी बात को बोला कि तुम्हें इस पे अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही उसने शादी की बात करना शुरू कर दी उसकी बहन की, और फिर वहाँ पे भी जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई तो उसे कॉफ़ी की तरफ ले आया. ये इतनी चापलूसी से उसने पूरी कॉन्वर्सेशन को चेंज किया और उसे कंट्रोल किया कि आपको एक्चुअली डर लगता है. अब जब वो लास्ट में कहता है कि इसको पनिश करना पड़ेगा, आई वाज रियली स्केयर्ड. आई वाज लाइक प्लीज़ उस औरत को मरने ना देना कि सानिया जो है बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, कि हाँ मेरी वजह से हुआ, टू टीच हर अ लेसन, यू नो. Yeah, he's really something else. And I think with every successive episode, you see a darker shade of Shahnawaz that you haven't seen before. So he's much darker than what you think he is. And ye jitni bhi is acting kar raha hai na, you know that he's acting when he's being nice. और शादी देखो, वो जो मैं कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और इम्परफेक्ट होने की बात कर रही हूँ ना, वो सानिया और मिना के इंटरेक्शन में भी आपको नजर आया. सानिया ने उससे बोला कि मुझे वो चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, तो सानिया इज़ ऑल्सो लर्निंग, यू नो, दैट वो इतनी उसके आउटबर्स्ट्स नहीं हो सकते. और मिना ने भी उसे एक्सप्लेन किया कि मेरा क्या मतलब था, या मैं तो नहीं निकल सकती, तुम निकल सकती हो उस चीज़ में से अभी भी. या मीना की एक्चुअली बात बहुत सही थी. एंड यू नो, बिकॉज शी इज वेरी लॉजिकल, शी इज रैशनलाइजिंग एवरीथिंग. शी इज सेइंग हम तो आहिस्ता आहिस्ता चुप हो गए, बट योर हस्बैंड सपोर्ट्स यू. सो यू, बिकॉज यू सी, आप हमेशा दूसरे का वो देखते हैं जो आपके पास नहीं है. Faizan never supported her. So she sees that in Salman and she says, you have this benefit, so you should walk out of it. And that's why I'm questioning Sania. Why doesn't she just walk out of it? बट आई एम सेइंग वॉक आउट करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा अब ना. नहीं पड़ेगा, यू आर राइट, नहीं पड़ेगा. नहीं होगा. ये लोग तो अब ऐसे कुएं में फंस गए हैं, दलदल है इसमें, तो पता नहीं क्या क्या ही होगा. अनलेस फरहीन टेक्स अ स्टैंड, अनलेस वो जो दूसरी डॉक्टर है, डॉक्टर रुबीना, अनलेस डॉक्टर रुबीना टेक्स अ स्टैंड एंड शी सेज मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, बट लेकिन डॉक्टर रुबीना भी चली गई वो कह के, लेकिन उनका रोल होगा आगे जाके. तो somebody needs to take a टक्कर विद डॉक्टर शाहनवाज ना, तब तक तो नहीं हो सकता, वो फंसी हुई है. अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं फैजान ने क्या बोला है डॉक्टर अंबर को, क्योंकि उसने कहा मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो उन्होंने म्यूट कर दी वो कॉन्वर्सेशन. वो कहेगा अभी किसी को बताएंगे नहीं, ये हम खुफिया रखेंगे निकाह. इट्स नॉट, दैट इज व्हाट आई जस्ट लव डॉक्टर अंबर्स रिएक्शन. शी इज लाइक, नो डोंट डू दिस टू मी, डोंट. इनफैक्ट उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी. इट वॉज सो रिलेटेबल. अगेन जो हम इनकी कह रहे हैं कॉन्वर्सेशन रिलेटेबल थी, सलमान और सानिया की, यहाँ फैजान एंड डॉक्टर अंबर की भी बड़ी रिलेटेबल थी, बिकॉज ही रियली डज लाइक हर. हाँ, या मैं, तुम सही कह रही थी पिछली बार भी जो तुमने कहा कि तो वो उसको पसंद करता है. हाँ. अब देखो ये टिपिकल, ये जो आदमी होता है ना कि वहां जाके इतनी हिम्मत है कि उनके साथ निकाह कर दे, लेकिन यहाँ के अपने अब्बा को नहीं कह सकते कि मुझे ये शादी नहीं बरकरार रखनी, आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ दिस. करेगा करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा. खैर, लास्ट आई थिंक बट नॉट द लीस्ट, द सीन विद द सईदा पुप्पो. यार अमेजिंग, वाओ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. व्हाट अ सरप्राइज एंड सच अ ग्रेट, you know, twist. It was so well executed and so sensitively executed that you were listening to the conversation to see कि how will these girls make her feel comfortable about it, you know. And also I think Rabia, in the way that Saida Phuppo approaches her illness, अभी तक हमने देखा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो सब कुछ जो है ना अपना ब्लॉग भी बना रही हैं, सब कर रही हैं, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ हर that finds it really challenging to do this. And you know, when the girls opened the door, that's the part that they saw, and they just made it very normal. They normalized it and they said no, it's okay, you know, it's fine. And unko mazak bhi unhone mazak mein usme sab kuch karke, and they made her feel better. So I think it was a very beautiful conversation. And I want to appreciate Sanam for writing such a beautiful character and including this part, and the way Mehreen has directed it, you know, lighting, because it's very technical चीज़ें हैं शाज़िया. मैं उससे बात करती हूँ, but पहले I want to appreciate Sanam for creating this character and adding this cancer part, because इतना important है कि हम struggles को देखें, समझें और उसको normalize करें. मुझे तो लगता है ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इस पे कोई अवार्ड मिलना चाहिए राइटर को, to come up with this thing. क्योंकि जब आप ये कैरेक्टर्स इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं आपके लिए. तो व्हेन यू सी सम अ वुमन
विदाउट हेयर, यू नो, वो बॉल्ड है, वो आप उसको किसी कैफ़े में, कहीं रोड पे, कहीं मॉल में देखेंगे तो आप मुड़-मुड़ के नहीं देखेंगे। मुड़-मुड़ के नहीं देखेंगे कि आपकी ओह! आप ऐसे कोनियाँ मार के एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपको आदत हो गई होगी जब आपके ड्रामे इस चीज़ को यू नो फीचर करेंगे, जिस चीज़ को हाइलाइट करेंगे विद सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट। तो ये उन लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये औरत की एक वीकनेस है। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि वीकनेस है, हाउ यू लुक, हाउ आर यू कमिंग अक्रॉस, यू नो, आपके बाल, आपकी लुक, वो फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, यू नो। सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली सनम फॉर क्रिएटिंग दिस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। शायद वो लोग खुद इस बात को नहीं रियलाइज़ करें कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया और इसी से चीज़ें आगे बेहतर होंगी। सेकेंड, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द वे इट वॉज डन, यू नो, उसकी जो लाइटिंग है, उसका जो कैमरा एंगल है, कि उन्होंने पूरा नहीं दिखाया, हल्का सा दिखा के वो इम्प्रेशन भी दे दिया, वो चीज़ भी दे दी, उनका चैलेंज भी दिखा दिया। एंड वो जो पूरा मेकअप है, जो पूरा उनकी अपीयरेंस है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। और मैं बख्तावर से बात कर रही थी तो शी वाज टेलिंग मी कि वो उसको करने में काफ़ी टाइम लगता था, यू नो, वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो भी उन्होंने अभी हम डिटेल नहीं शेयर करें, वी विल शेयर द डिटेल्स सून अबाउट दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड में भी। तो वो उन्होंने किया, स्पेशल किसी को बुलाया जो ये करे। और देखो यहाँ से भी मैं देख रही थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा उसको फिक्स किया हुआ है, कि वो लगता था जैसे कि किसी के बाल अगर गए हों तो वो जो एक हल्का सा शैडो आता है वो चीज़ें, नॉट दैट कि किसी ने ऐसी पेस्ट की हुई है कोई चीज़ें। तो बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ऑलमोस्ट परफेक्शन के साथ उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया। उसमें एंगल, डीओपी का काम, बख्तावर की परफॉर्मेंस, यू नो, पूरे डायलॉग्स बहुत खूबसूरत थे। एंड देन एज यू सेड, दे ऑल्सो टोल्ड अस हाउ वी कैन सपोर्ट बाय नॉर्मलाइजिंग इट विदाउट मेकिंग देम फील, यू नो, कॉन्शियस अबाउट इट। जो हमारे लव्ड वंस हो हमारे आसपास, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। So, two things. Number one, तुम लाइटिंग की बात कर रही थी विद सईदा पुप्पोज कैरेक्टर। आई हैव ऑलवेज सीन कि जब से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में भी उन्होंने लाइटिंग डिम रखी है, उन्होंने कमरे में भी ऐसी ही रखी हुई थी, विच आई थिंक वाज शोइंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू एंड ऑल्सो टेलिंग अस कि अच्छा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। Secondly, the thing where the girls told her कि आपको ज़रूरत नहीं है विकी, there are a lot of cancer patients, most of them actually, they do wear a wig when they leave the house, at least they might not wear it inside, and I think वो उसको भी embrace करते हैं। and जो तुम बात कह रही हो वो भी सही है, और जो लड़कियों ने भी कहा कि just be comfortable with it, क्योंकि अगर वो घर में अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल होते भी है ना राबिया विदाउट वेयरिंग वन, इफ दे स्टेप आउट they will be looked at, and to deal with that is so much that they wear it. So there's a fine line, are they comfortable wearing it, or are they wearing it so that they do not attract attention, and everyone should be allowed to manage it the way they want to. बिल्कुल। मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कहीं भी उस चीज़ के अगेंस्ट की, उन्होंने मुझे लगा कि फोकस वाज़ मेकिंग सईदा फूफो कंफर्टेबल विद एंड टेलिंग her कि इट्स ओके, आप परेशान नहीं हो, डोंट थिंक कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्योंकि वो कहती है अभी तो इलाज बहुत अरसे चलेगा, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं क्या करूँगी? तो आई थिंक ये बहुत अच्छा दिखाया कि उन्होंने ये नहीं बोला कि ये करें या वो करें या ये गलत है, या बस उन्होंने उनको बोला जो आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ करें। और उनको ईज़ पे किया सईदा फूफो को, जो कि शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द रिलेटिव्स टू डू फॉर एनी कैंसर पेशेंट, यू नो। You want to talk about Faryal quickly, or are we done? ओके जी, लास्ट फरियाल, आपको कैसा लगा फरियाल का एंगल जो लेकर आ गए कि अब वो इस्लामाबाद वाले ऑफिस में काम करी हैं, उन्होंने मैसेज भी किया? तो मुझे मैसेजेस तो वो कुछ ज्यादा ही मैसेजेस कर रही थी, भाई जब अम्मा तुम्हें बुरा भला कह चुकी हैं फोन पे, जस्ट स्टे अवे, यू नो ही इज मैरिड, ठीक है। बार बार आई नो शी वाज कंसर्न, लेकिन मुझे सानिया की बात एक्चुअली सही लगी कि देखो वो तुम वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाह रही है। मे बी शी इज डूइंग इट अनकॉन्शियसली, आई एम सेइंग नाउ, बट शी इज डूइंग इट एंड शी इज अलोन। लेकिन जो उन्होंने ट्विस्ट दिखाया ना कि शी सेज कि देखो यहाँ बहुत मुश्किल है, हरासमेंट बहुत होती है, दे पिक्ड अप ऑन अनदर पॉइंट व्हिच आई थॉट वाज वेरी गुड, एंड ऑल्सो कि मेरा बेटा है, तो यू नो वहां अदरवाइज मैं सोची थी कि क्या रीजन है सलमान की कि इसको रखे, फिर भी उसने कहा है कि 3 महीने में शी इज गोना फाइंड अनदर जॉब। सो आई लाइक द वे द ट्विस्ट वेंट कि इट वाज नॉट समथिंग फोर्स्ड अपॉन अस कि अब सलमान इज गोना ड्रॉ क्लोजर टू फरियाद, बट इट वाज अ जेन्युइन प्ली फ्रॉम हर कि भाई मेरे पास अभी चॉइस नहीं है। ट्रू। और दूसरी बात ये कि अगर वो एक टिपिकल ट्विस्ट भी लग रहा है कि आप पुरानी मोहब्बत को लेकर आ गए हैं एंड शी इज़ द विलन,
तो सनम की राइटिंग के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टिपिकल चीज़ को लेके भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, डिफरेंट तरीके से लिखती है, उसमें फ्रेशनेस होती है, उसमें एंगल डिफरेंट होता है, सो आई एम क्वाइट ओके विद इट एंड आई एम एक्सप्लोरिंग कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, आई एम वेटिंग। I think she's going to be a positive character, a sad but positive character, so should be okay. But अभी कुछ तो होगा conflict. एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सलमान जो है वो सानिया से मशवरा लेता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसको माफ़ कर दूँ, वकास को मैं क्या करूँ? तो उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी दिखाई है इन दिस सेंस कि वो उसको कोशिश कर रहा है कि वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, वो भी अपनी बातें बता रही होती है कभी-कभी। तो एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग दिखाया है कि ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट फॉरगिविंग वकास, यू नो, और वो सोच रहा है कि उसकी शायद ज़िंदगी बच जाए, शायद वो अपना सबक सीख ले अगर मैं कर दूँ माफ़, यू नो। Yes. ठीक है जी। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा गप टुडे। आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज़ बताइए, अपना ख्याल रखिए। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज.